السلام علیکم، تم دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل تھال دا منڈا۔ میں ہوں محمد اکرم اور ویور آج ہم آپ کو سناتے ہیں جس شخص نے جس ایم پی اے نے تھل جیپ ریلی منظور کروائی ہے۔ تو 8ویں تھل جیپ ریلی ہے، تو سب تو پہلے جو ایم پی اے تھل جیپ ریلی لے کے آنے والا ہے حکومت سے، تو اس کی ہم آپ کو تقریر سناتے ہیں جو آج کل اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ ناصر بھائی، آپ ادھر کیمپ پہ تشریف لائے۔ آپ کا اور باقی یہاں پہ جتنے بھی دوست کھڑے ہیں ان کا اپنا کیمپ ہے، میں تو بیسیکلی یہاں پہ سرو کر کے خوش ہوتا ہوں۔ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ یہ 8ویں تھل جیپ ریلی جو ہے نا وہ کل اختتام پذیر ہوگی، تو آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اب یہ ایک پودا جو ہم نے لگایا تھا اب تناور درخت بن چکا ہے۔ تو اس کے پیچھے یہ تھا کہ میں نے ایک دفعہ چولستان کی جیپ ریلی دیکھی، پھر ٹی وی پہ پہلے ٹی وی پہ دیکھتے تھے کہ چولستان جیپ ریلی ہوئی، فلاں فرسٹ آیا، فلاں سیکنڈ، لوگوں کا جوش و خروش۔ تو مجھے بھی یہ خیال ہے کہ جس طرح چولستان کا ڈیزرٹ ہے تو اس طرح ہمارا بھی ڈیزرٹ ہے، تو جیپ ریس یہاں بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ 2013 سے میں نے اس کے لیے کوشش شروع کی، بالآخر 2016 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ بیسک جو ہے نیڈ اس کی یہ تھی کہ ایک تو دیکھیں کہ یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، بالکل عالمی ایونٹ بن چکا ہے اب یہ۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ اتنا بڑا ایونٹ بن چکا ہے کہ چوبارہ اور لیا کا نام ہم لیتے تھے تو وہ لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کس طرف ہے، لیا کس طرف ہے۔ ایون چوبارہ کو چھوڑے لیا کو بھی لوگ نہیں جانتے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ لیا اور چوبارہ جو ہے وہ پوری دنیا میں جیپ ریلی کے حوالے سے پوری دنیا میں اس کا نام اجاگر ہو چکا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ لوگوں کو روزگار ملے، تیسرا یہ تھا کہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ ملے۔ تو الحمدللہ اب لوگوں کو روزگار بھی یہاں پہ مل رہا ہے، انٹرٹینمنٹ بھی مل رہی ہے۔ اور دیکھیں چوبارہ تھل جیپ ریلی آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو پوری دنیا دیکھ سکتی ہے کہ چوبارہ کدھر ہے۔ تو کم از کم چوبارہ کو ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہے اور اتنے اچھے طریقے سے کرایا ہے کہ اب کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ لوگوں کو بہترین انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے، لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ تو لیکن ایک فرق بڑا نظر آ رہا ہے، آج ہم نے شائقین سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جو 2015 میں ریلی شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد آپ کے دور میں جو ایونٹس ہوتے تھے یہاں پر ڈانس، نیزہ بازی، وہ کافی بہتر تھے آج کی نسبت۔ اب جو ہے وہ ریلی میں اتنے ایونٹس نہیں کیے جا رہے جس سے جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچے یا مستفید ہوں۔ ناصر بھائی اصل بات یہ ہے کہ مقامی جو پبلک ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے نا، اس کا انٹرسٹ میٹر کرتا ہے کہ وہ کتنا انٹرسٹڈ ہے۔ آپ نے دیکھا مجھے تو شوق تھا، میری خواہش تھی اور یہ میرا خواب تھا، اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، ورنہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کہاں چوبارہ اور کہاں جیپ ریلی۔ دیکھیں پورے ملک میں 6 ایونٹ ہوتے ہیں جیپ ریلی کے۔ جل مکسی سے سٹارٹ ہوا، جل مکسی کے بعد چولستان، پھر گوادر، پھر اس کے بعد ہماری جیپ ریلی آئی، اب ڈیرہ جات اور سکردو بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو یہ پورے ملک میں 6 جیپ ریلیز ہوتی ہیں اور الحمدللہ یہ ہمارے جتنے بھی ریسرز ہیں وہ ایکنالج کرتے ہیں کہ جتنا اچھا سٹیج بریک چوبارہ کا ہے، کہ پورے پاکستان میں جتنے ایونٹ ہوتے ہیں ہم بھی جاتے رہتے ہیں، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ تو اس میں ہم نے صرف جیپ ریلی نہیں، ڈے 1 سے میں نے یہ خیال کیا کہ دیکھیں یہ ایک ایسا ایونٹ ہونا چاہیے، کسی کو کبڈی کا شوق ہے، کسی کو نیزہ بازی کا شوق ہے، کسی کو گھوڑا ڈانس کا شوق ہے، کسی کو والی بال کا شوق ہے، کسی کو جیپ ریس کا شوق ہے۔ تو جو بھی لوگ یہاں پہ ہیں ان کو ان کے مزاج کی ہر انٹرٹینمنٹ یہاں پہ ملے۔ تو ہمارے دور میں یہی ہوتا تھا کہ ہم نے اپنی جیب سے خرچے کر کے تو یہ ایونٹ سٹارٹ کرایا۔ جس دن یہ جگہ میں نے سلیکٹ کی تھی اس دن میں پہلے دن جب یہ ڈی سی صاحب اور میں اور ٹی ڈی سی پی والے آئے تو یہاں بٹیروں کا جال لگا ہوا تھا، ہر طرف ٹیلے ہی ٹیلے تھے۔ ان ٹیلوں کو آباد کرنے میں 6 مہینے ہمیں لگے، اور 6 مہینے صرف یہ نہیں کہ کچھ سرکاری مشینری سے لگے، میری مشینری، میرے دوستوں کی مشینری، میرے علاقے کے جتنے بھی دوست ہیں سب کی مشینری ملا کے ہم نے اس کو جو ہے نا اس کو لیول کیا تھا۔ اور اسی طرح جو ٹریک 100 کلومیٹر کا ہے ہمارے ایریے میں جو آتا ہے تحصیل چوبارہ کے ایریے میں،
वो सारा हमने खुद बनाया था, आने का भी जाने का भी। तो उस वक्त मुजफ्फरगढ़ वालों को आपने कैसे मुतमईन किया इस हवाले से? मुजफ्फरगढ़ वाले जो हैं, मुजफ्फरगढ़ में देखें आप, वहाँ पे हालांकि वो स्टार्ट पॉइंट है, उसकी अहमियत अपनी जगह पे है, लेकिन वहाँ पे देखें, वहाँ ना किसी पॉलिटिकल का इंटरेस्ट है ना पब्लिक का इंटरेस्ट है। वहाँ पे देखें बैठने की जगह भी नहीं है, रेसर बेचारे खड़े होते हैं गाड़ियों के साथ ऐसे टेक लगा के, बैठने की जगह नहीं है। हम देखें यहाँ पे 10 दिन पहले कैंप इंस्टॉल करते हैं रेस से पहले। सबसे पुराना कैंप आपका माना जाता है। कुछ लोग इक़्तिदार में आए, उन्होंने कैंप लगाए, जब इक़्तिदार ख़त्म हुआ कैंप भी ख़त्म हो गए। जी, आपका कैंप इक़्तिदार में रहे ना रहे, लेकिन आपका कैंप जो मेहमान नवाजी के हवाले से सबसे अहम माना जाता है और पुराना माना जाता है। बल्कि मैं हैरान हूँ इस बात पे कि ये मेरा कैंप यहाँ से शिफ्ट कराने की कोशिश की गई कि ये कैंप यहाँ पे ना हो। तो मैंने कहा ये किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है कि कैसर खान मजसी का कैंप यहाँ से उखाड़ के किसने कोशिश की? जी, पूछ सकते हैं किसने कोशिश की? आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं जिसने कोशिश की। आपको भी पता है, बाकी भी पूरी दुनिया को पता है। बल्कि लेकिन आपने भी तो गुज़श्ता जो है जीप रैली में नहीं, मेरी बात सुनिए। देखें, वीडियो वायरल कर देना वो आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है, आप जो मर्जी चाहें कर लें। देखें, उसमें मैंने इतना कंप्रोमाइज़ किया था कि ये जगह खाली पड़ी हुई थी और 2 दिन जो है ना, इसको इवेंट को शुरू हुए 2 दिन हो चुके थे। अब देखें, जिसने कैंप लगाना होता है ना, वो इवेंट शुरू होने से 1 दिन पहले अपना कैंप लगा देता है। जब इवेंट शुरू हो जाता है तो उसके बाद जगह खाली पड़ी है। देखें, ये सारी अवाम नास के लिए, आप यहाँ से चलें, आप हेड मोहम्मद वाला तक जाएं, आते जाते पूरे रोड पे हर टीले पे कैंप लगा हुआ है। इसका मज़ा ही यही है कि लोग यार आते हैं, कैंप लगाते हैं, सारी दुनिया के गम भूल के अपने गपशप करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये जगह सामने वाली जगह थी, इस पे 2 दिन इवेंट को हो चुके थे। तीसरे दिन एसी लिया ने यहाँ पे आके कैंप लगाया, असद अली बुद्ध ने, और उस कैंप के बाहर कुछ शरीफों ने आके बाहर उसको कार्डन करके उसके साथ अपना कैंप लगा दिया। सही। तो मैंने, जब मुझे पता चला, मैंने एसी को रिक्वेस्ट की थी, आप आज भी फ़ोन कर, मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि यार देखें, हम होस्ट हैं, हम मेज़बान हैं, आप भी और मैं भी मेज़बान हैं, तो हमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। हमें कोई ये ना कहे कि यार ये पावर में थे तो इन्होंने किसी को कैंप नहीं लगाने दिया या किसी का कैंप उखाड़ दिया। सही। तो वो नाराज़ होकर चला गया असद अली बुद्ध, उसने अपना कैंप भी यहाँ से नहीं उखाड़ा, वो नाराज़ होकर चला गया, उसका कैंप भी वो लोग इस्तेमाल करते रहे और वो 2 दिन इवेंट पे भी नहीं आया। सही। डीसी साहब और मेरे कहने के बावजूद उसने कहा कि जी नहीं, बस आपने मेरी इंसल्ट की है तो मैं नहीं आऊँगा। हमने अपने एक ऑफिसर की इंसल्ट बर्दाश्त की, लेकिन किसी को गिले शिकवे का मौका नहीं है। वैसे किसी को रोने की आदत हो, को रोता फिरे, तो मैं उसको चुप नहीं करा। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि कैंप का बहुत खर्चा होता है यहाँ पे, इतनी मेहमान नवाजी, रेसर्स आते हैं, ख़वातीन रेसर्स भी इधर ही आके स्टे करते हैं, मर्द रेसर्स भी, और दीगर जो हैं लोग आते हैं, सियासी आते हैं। तो ये क्या जब इक़्तिदार में रहे तो तब भी अपनी जेब से खर्चा करते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब पहला इवेंट कराया था, पहले इवेंट पे ऑन द रिकॉर्ड मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड भी होगा कि मैंने 35 लाख रुपए पहले साल खर्चा किया था अपनी जेब से, जबकि मैं MPA था। मैंने किसी की मिन्नतें नहीं की। मैंने वहाँ पे स्टेज पे जो कैंप लगवाया था, वो टेंट ग्रीनलैंड वालों से मैंने उसकी जो है ना टेंटेज करवाई थी। सही। कैटरिंग वाले थे, नए कालीन थे, नए सोफे थे और सारी कनोपी बिल्कुल 0 मीटर थी। AC वाजिद अली शाह साहब जिंदा हैं, आप उनसे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, वो यहाँ पे आए, वो AC के साथ नाराज़ हुए। वट्टू साहब AC थे कि जी आपने इतनी कीमती वो जनाब लगवा दी, हम पैसे कहाँ से ले गए? तो उसने कहा जी मुझे तो पता नहीं किसने लगवाई है, मुझे तो यही पता चला है कि जी वो लोग आए, उन्होंने कहा जी मक्सी साहब ने भेजा और हमने लगा दिया। मुझे उसने बताया, मैंने DC साहब से बात की, मैंने कहा DC साहब देखें, ये इवेंट मैं करवा रहा हूँ, मेरा शौक़ था, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, मेरा शौक़ पूरा हो रहा है, इसमें आप हर्डल ना डालें। सही। आपको पैसों की प्रॉब्लम है ना, पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ और अपनी आपसे नहीं मांगूंगा, आप इसके टेंडर भी ना करें, आप गवर्नमेंट से भी ना लें,
जब मैं अपनी जेब से खर्च कर रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, आप ये इवेंट मुझे अपनी मर्जी से करने दें। उन्होंने मुझे कहा कि जी अगले साल कोई स्पॉन्सर आ जाएंगे तो हम अच्छा इवेंट कर लेंगे, इस साल ज़रा गुजारा करते हैं, हमारे पास फंड नहीं। मैंने कहा सर देखें, ये फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर हमारी पहली रैली कामयाब नहीं हुई, अगर हम एंटरटेनमेंट लोगों को नहीं दे सके, लोग यहाँ आके खुश नहीं हुए, तो अगले साल रैली पे कोई नहीं आएगा। पहली रैली हम इतने अच्छे तरीके से कराएं, इतने शानदार तरीके से कराएं कि अगले साल लोग कहें कि यार सारे काम छोड़ दो, रैली पे जाना है। ठीक है ना जी। तो मैंने कहा जनाब मेरा शौक़ है, मैं अपनी जेब से कर रहा हूँ, आप वरी ना करें। मीटिंग हुई, मीटिंग में मैंने खुला के ये कहा कि यार रेसर को खाना मैं दूँगा, सही है, रेसर का सारा अरेंजमेंट मैं करूँगा, यहाँ पे जितने भी अखराजात होंगे मैं करूँगा, लेकिन हम किसी जगह पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने आज तो हर कोई फटे पुराने अपने कैंप लगा के बैठा हुआ है ना, इस ये जो आप ये खाने पीने के जो स्टॉल हैं, मैंने मुल्तान से कैटरिंग वालों को कह के यहाँ पे पूरा बाज़ार लगवाया और सब लोगों को मैंने बुला के कहा कि मैंने कहा आपके लिए ये फ्री है, आप इसमें अपने होटल बनाएं, रेस्टोरेंट बनाएं, अच्छा खाना दें, ये आपके लिए फ्री है। उसका किराया मैंने अपनी जेब से दिया था। रेसर जब पहले साल यहाँ पे आए थे तो तकरीबन 200-250 लोग थे, तो उनको यहाँ पे इस जगह पे सामने ये जो स्टार्ट पॉइंट है, इस जगह पे मैंने खाना दिया था और उसमें मटन भी नहीं था, चिकन भी नहीं था, टोटल शिकार था। सही, हरन था, फिश थी, तिलोर थी, तीतर था, बटेरे थे, पाड़ा था, मतलब इस टाइप का शिकार मैंने उनको यहाँ पे खिलाया। सिर्फ वो को ऐसे लोग नहीं थे कि वो मेरा खाना खाने आए थे, वो बड़े नवाब लोग हैं जो रेसर है। तो मैं कहता हूँ कि उनकी मेहरबानी है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता था कि वो आए हैं तो मैं उनकी इज़्ज़त अफजाई करूँ। आज भी जब ये मैं इक़्तिदार में हूँ या नहीं हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट पे ही रेसर आते हैं, मेरे अलावा कोई रेसर यहाँ पे चुबारा के किसी बंदे को नहीं जानता। अगर किसी को खुदा न खास्ता को हादसा पेश आता है, ये देखें बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, मुराद अली शाह साहब के बेटे की गाड़ी को हादसा हुआ है। मैंने रेस्क्यू 1122 वालों को नहीं कहा कि आप अपनी गाड़ी में उनको मुल्तान ले जाएं, मैंने अपनी गाड़ी में अपने बेटे के साथ, अपने ड्राइवर के साथ उनको मुल्तान। अब ये बात चली निकली है तो उन्होंने तो तर्जमान से इन्होंने तरदीद कर दी कि वो कह रहे हैं उनका बेटा ही नहीं है, इसकी क्या? यार मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, आप इस बात को छोड़े, वजह क्या हो? मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, ये गाड़ी भी मुराद अली शाह साहब के नाम पे है। सही है, तो उनका ड्राइवर भी अभी गाड़ी लेने आया हुआ है। सही तो है, इसको हमने रेस्क्यू करके हम रात को 12 बजे यहाँ से लेके आए। सही है। तो हम तो बस ये देखें, अब आप ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं। अब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने पैगाम इलाके के लोगों को? इलाके के लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि लोग एंजॉय करें। हमने भी एक दिन मर जाना है, लेकिन लोग ये याद करेंगे कि किसी ने हमारे लिए एक इवेंट जो है ना जंगल में मंगलाया था, और ये चलता रहेगा। हम नहीं होंगे लेकिन ये इवेंट चलता रहेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कैसर खान मक्सी, जिन्होंने ये जीप रैली स्टार्ट की थी। आपने इनकी बातें सुनी, मज़ीद भी जीप रैली के हवाले से हम अपने नाज़रीन को अपडेट देते हैं।